Hello student, today we will discuss more examples from the Z transform. This is the last example which we have taken in previous lecture. X of n equal to a raised to power n from 0 to capital N minus 1. So this is a finite duration signal, and if this is finite duration signal, so region of convergence is entire Z plane except Z equal to 0, because this is right-sided sequence, and the summation, this is finite summation, so formula will be 1 minus a raised to power n divided by 1 minus a is the geometric ratio, so 1 minus a z inverse raised to power n divided by 1 minus a z inverse, and the pole zero plot from this function. Pole zero is n minus 1 pole at the origin and 1 pole at z raised to z equal to a, and 0 is at j raised to power j equal to a. So here n0 from z equal to a means the radius of the circle is a, but one pole and 1 0 is cancelled here. So n minus 1 pole at origin and n minus 1 0 at z equal to a in the radius of z equal to a. So this is the answer, and this question is very important. In every 2 year or 3 year, this question will come up. Next question, that is this question is already discussed in previous class. So we will come up at 4.6. This is x of n equal to 1 by 2 raised to power n into un plus 1 by 3 raised to power n into un. Try to solve through your own. This is very simple question. 1 by 2 raised to power n un. Then z transform of this function is z by z minus 1 by 2. Here e raised to power n un, a equal to 1 by 2. If a equal to 1 by 2, then the z transform is 1 by 1 minus 1 by 2 z inverse. Okay, and z 1 by 1 by 1 minus 2 z inverse, that is equal to z by z minus 1 by 2. And region of convergence चूंकि ये right sided sequence है, so if this is right sided sequence, so the region of convergence is mod of z is greater than 1 by 2, and 1 by 3 raised to power n un, इसका z transform होगा z by z minus 1 by 3, and the region of convergence is mod of z is greater than 1 by 3. Okay, so the z transform of this overall function is z by z minus 1 by 2 plus z by z minus 1 by 3. तो और सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा. And region of convergence is intersection of these two functions, these two region of convergence is mod of z is greater than 1 by 2 and mod of z is greater than 1 by 3. 1 by 3 कम है, 1 by 2 जस्ट ऊपर है, तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, mod of z is greater than 1 by 2. So और 2 0 at origin, 2 0 at z equal to 0 and z equal to 5 by 17. Okay, here 5 by 12, and two poles at z equal to 1 by 3 and z equal to 1 by 2. So this is the answer for this function. Similarly here one function is right sided and second function is left sided. So region of convergence, just region of convergence के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आंसर वही है z by z minus 1 by 3, z by z minus 1 by 2. यहाँ क्या है, रीजन ऑफ मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 by 3. क्यों, क्योंकि ये राइट साइडेड सीक्वेंस है और ये मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 by 2, सो ये दिस इज लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस. तो इन दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, ग्रेटर देन 1 by 3 एंड 1 by 2. तो ओवरऑल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 by 3 हो जाएगा, सॉरी 1 by 2 हो जाएगा. यहाँ पर ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 by 3
एंड मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/2, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या होगा, ये एक रिंग बन जाएगी। एंड इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा मॉड ऑफ z इज लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/3, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो यहाँ पर चूंकि एक राइट साइडेड सीक्वेंस है और एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, इसलिए रिंग बन जाएगा। यहाँ पर दोनों ही राइट साइडेड है, तो जो भी आपकी आउट वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू है, उसके आगे ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, एक्स ऑफ एन इक्वल टू ए रेज टू पावर मॉड ऑफ एन। सो व्हाट इज a raised to power mod of n means this function includes a right-sided sequence as well as left-sided sequence, because n may be positive or negative. So x of n equal to a raised to power n u n plus a raised to power minus n into u of minus n minus 1। तो इसका z ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। इसका z ट्रांसफॉर्म होगा, अभी हम लोगों ने कई बार इस फार्मूले को सॉल्व किया है, ये हो जाएगा z बाई जेड माइनस है, और चूंकि राइट साइडेड सीक्वेंस है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। उसी तरीके से ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो z बाई जेड माइनस 1 बाई a रेज टू पावर माइनस n मीन्स 1 बाई a रेज टू पावर n। सो 1 बाई a रेज टू पावर n, तो 1, इसलिए यहाँ पे z बाई जेड माइनस 1 बाई a एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 बाई a। और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, क्योंकि एक राइट साइडेड एक लेफ्ट साइडेड है, तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक रिंग मिल जाएगा, ये है ना। तो स्टार्ट आउट कर लें। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टीज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट, ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि आगे जब भी हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की एनालिसिस करेंगे, है ना, तो एनालिसिस में आपका ज़्यादातर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही यूज होगा। डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज एक्स ऑफ जेड, देन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट इज जेड रेज टू पावर माइनस एन नॉट इंटू एक्स ऑफ जेड। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सॉल्व करने की बात है, तो सॉल्व करने में n माइनस एन नॉट को m रख लेंगे। तो ये n माइनस एन नॉट इक्वल टू m होगा, तो n क्या हो जाएगा, a इक्वल टू m प्लस एन नॉट। तो x ऑफ m इंटू जेड रेज टू पावर माइनस एन, और z इक्वल टू माइनस एन नॉट बाहर हो जाएगा, और ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया x ऑफ z। तो z रेज टू पावर माइनस एन नॉट इंटू एक्स ऑफ z, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी उसी के अकॉर्डिंग इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो सिंपल फार्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज का इसमें दिया है, बुक आपको मिल गई है स्टोन सीरीज की। तो यहाँ से हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ, हालांकि प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इस प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4.10। यहाँ एक्स ऑफ एन इक्वल टू डेल्टा एन माइनस एन नॉट, तो क्योंकि डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म आपको पता है 1 है, तो डेल्टा एन माइनस एन नॉट कर, इस पर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ द जेड ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का जेड रेज टू पावर माइनस एन नॉट इंटू एक्स ऑफ जेड। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, जेड रेज टू पावर माइनस एन नॉट इंटू 1। So the z transform of this function is z raised to power minus n naught, है ना। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी आउटसाइड ऑफ द सर्किल हो जाएगा, राइट साइडेड। सो हियर देखिए u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म z बाई जेड माइनस एन, u ऑफ n माइनस एन नॉट का इसी के आगे z रेज टू पावर माइनस एन नॉट से मल्टीप्लाई, a रेज टू पावर n प्लस वन इंटू यू ऑफ n प्लस वन। तो a रेज टू पावर n इंटू यू एन का पता है z बाई जेड माइनस वन, तो इसका a रेज टू पावर n प्लस वन का क्या हो जाएगा, z इंटू जेड माई जेड माइनस a, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इन बिटवीन a टू infinite। Similarly
यू ऑफ माइनस एन, इसमें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लग जाएगी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एक्स ऑफ जेड माइनस वन, तो जहां पर भी जेड है उसको जेड वन बाई जेड कर लें। यू ऑफ माइनस एन है तो ये वन बाई जेड बाई वन बाई के जेड माइनस वन, तो यहाँ वन बाई वन माइनस जेड आ जाएगा। सिमिलरली ए रेज टू पावर एन का जेड बाई जेड माइनस, अब जेड जहां पर भी है, अगर ए रेज टू पावर माइनस एन इंटू यू ऑफ माइनस, तो जहां भी जेड है वहां वन बाई जेड कर लें। तो ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और सॉरी ये जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, जहां पर भी जेड है वहां जेड इनवर्स करते हैं। तो जब जेड इनवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन, वन बाई ए, क्योंकि यहाँ जेड बाई जेड इज ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ वन बाई जेड करेंगे, तो जब वन बाई जेड करेंगे तो ये ए है, तो जो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लेस देन वन बाई मॉड ऑफ ए। तो यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले डिस्कस की है, ये क्या है, एन इंटू एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म होगा माइनस जेड इंटू डी एक्स जेड बाई डी जेड। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना सबसे आसान है, क्योंकि एक्स ऑफ जेड का फार्मूला ये पता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस एन इंटू एक्स ऑफ एन जेड रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन। तो अब यहाँ देखिए इसको बाहर कर लेते हैं, एन इंटू एक्स ऑफ एन इंटू जेड रेज टू पावर माइनस एन, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड आपका इस डायरेक्शन में आ गया, तो एन इंटू एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस जेड इंटू डी, माइनस जेड इंटू डी एक्स जेड बाई डी जेड। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तीन प्रॉब्लम दी है इस फार्मूले का यूज करके, एक्स ऑफ एन इक्वल टू एन ए रेज टू पावर एन इंटू यू एन, और एक्स ऑफ एन इक्वल टू एन ए रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन इंटू यू एन। तो यहाँ पर देखिए ए रेज टू पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म ये है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करके माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर, तो ये जो है, ये जेड ट्रांसफॉर्म किसका हो जाएगा, एन इंटू ए रेज टू पावर एन इंटू यू एन। तो यहाँ शोम सीरीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जेड ट्रांसफॉर्म की भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई करें इसको सॉल्व करने की, अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, और उसके साथ साथ हम आपको असाइनमेंट भी सबमिट कर देंगे। कुछ उसमें इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी, उसको भी सॉल्व करके उसको स्कैन करके हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो अभी आज के लिए इतना ही। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स अपने कॉपी पे रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से देख के अगर आप काम करेंगे तो उतना बढ़िया समझ में क्लियर नहीं होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। इसके साथ साथ साइमन हेकिंस की बुक भी है, साइमन हेकिंस की बुक में चैप्टर नंबर 7 आपका जेड ट्रांसफॉर्म दिया है। कोशिश करिए इसको सॉल्व करिएगा। इसको इस बुक को भी हम लोग अगली क्लास में गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा इसको भी देखेंगे कि इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इस तरीके की चीज़ दी होगी जो थोड़ी समझ में आने वाली होगी, तो इसको भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज इतना आप काम करिए, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे।